हाय गाइस, आई एम इकनूर। हाय एवरीवन, आई एम शिवम। और आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड सो मच मोर डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव अ पॉडकास्ट गेस्ट ऑन द चैनल एंड विद दैट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस। गाइस, अब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाली हूँ और अभी आपको सब पता चल जाएगा हाउ डू शिवम नो मी एंड एवरीथिंग एल्स। बट इन केस एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आपके में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कमेंट भी है, जस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड फील फ्री। द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। एंड ऑन दैट नोट, शिवम, टेल एवरीवन इन द ऑडियंस हु आर यू, इंट्रोड्यूस। Shivam Khanna, and I grew up in Delhi and pursued my schooling from DPS Vasant Kunj, where I met Ignore. Post my schooling, I did my law from Amity Law School, Delhi, and then I did my masters in international security and terrorism from King's College, London. Being a hardcore fitness enthusiast, I also run a fitness business, like to explore places, people, travel, and have a very keen interest in subjects like astrology, psychology, and various things that are considered taboo in our society. गाइस, हम वो वाले चड्डी बड्डी स्कूल फ्रेंडशिप सक्सेसफुल वाली स्टोरी है और अब शिवम आपको बताने वाला है द एस्पेक्ट ऑफ हाउ डज ही नो मी एंड हाउ डिड वी कम अप टू डूइंग दिस बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग। वी हैव अ लॉट मोर इन स्टोर फॉर यू। तो हम दोनों के चैनल्स को, शिवम विल मेक अ यूट्यूब चैनल वेरी सून, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। Right. So, as far as I remember, हमारी earliest memory in school was we were in 6th or 5th class. जस्ट इमेजिन, लोगों की दोस्ती इतने साल सर्वाइव नहीं करती Right. है। And I used to enact the most weird and psychotic characters from Bollywood and Hollywood movies and make you laugh, and you Yeah. used to sit in the first bench and पढ़ाई में तो I used to take your help for He used to projects and write everything. without the refill in the pen. I used to write just with a refill. Yeah, just with the refill, yeah. And with a broken pencil. I don't know, we used to do weird stuff. Yeah. And Bollywood से एक obsession था. So I used to like a character every day. I used to come up with a new character when I entered the class, and we used to vibe with that character the entire day. कभी मैं कोई विलेन बन के आया हुआ हूँ, कभी कोई मैं psychotic इसमें I want villain. to, Shivam will tell you in a story that when he did law, I joined the same college a few years after that. And Shivam was literally the gunda of that college from being that very innocent kid in school, and he made me feel very comfortable. But yeah, he has this whole character shift journey, जिसके बारे में you'll get to know. It's not only about like a journey about fitness, but also about your mental strength and willpower. And with that, we're moving to the okay. अब तक तो we've been on a very personal front with the questions, but now I want कि शिवम आप सबको बताए that after he studied law and then when he went to the UK to do something completely different, फिटनेस में वो कैसे आया और उसकी ये जर्नी एक पैशन से एक प्रोफेशनल वे में कैसे आई? हाउ डिड हिज पैशन प्रोजेक्ट टर्न इनटू समथिंग वेरी प्रोफेशनल? बेसिकली लॉ में वैसे अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड लॉ इज समथिंग आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस. बट व्हेन यू पुट योर माइंड ओवर सच अ टैक्सिंग सब्जेक्ट फॉर द कंप्लीट डे, for me I need something to balance out the mental exhaustion that I face, and that can happen only when I exhaust myself physically. And that is something that आप में से काफी लोग भी, you guys must be facing in your lives as well. Right. We need a balance कि दिमाग थके और बॉडी भी थके तभी रात को अच्छी नींद आती है, अदरवाइज वी फील डिप्रेस्ड और एंग्शियस. सो ऐसी मेरी फिटनेस की जर्नी शुरू हुई. एंड अभी अराउंड 2022 में आई वॉज ऑल्सो स्क्रीन्ड इन फॉर द जैग एग्जाम्स हेल्ड बाय द इंडियन आर्मी. सो कहीं ना कहीं आर्मी से या मेरा दिस इवन आई डिडंट नो गाइस, मुझे अभी पता चल रहा है. सो उसके लिए इलाहाबाद में वी वर सिलेक्टेड एंड वी वर देयर फॉर 2 weeks. एंड इससे अगर मैं कल्मिनेट करूँ बात की, चाहे आर्मी से मेरा एक कनेक्शन मेरे को शुरू से फील होता है या मेरा जो इंटरनेशनल टेररिज्म का कोर्स है, दिस ऑल लिंक्स मी टू फिटनेस. एंड फिटनेस की जर्नी भी मेरी बहुत कन्वेंशनल नहीं रही. मैंने पर्पसली 30+ kgs 1-2 नहीं 3 बार बढ़ाया है एंड उसको फिर लीन डाउन करा है जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद माई बॉडी. आई स्टार्टेड आउट विद बेसिक वेट लिफ्टिंग जो कराते हैं, उसके बाद क्रॉसफिट करी, इंड्योरेंस करा, ये सब 1.5-2 साल करा. करते करते 9 साल हो गए. एंड देन आई फाउंडेड फ्लो कोर प्रोग्राम विच इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग कि आपको एक लुक फॉरवर्ड करने की चीज़ हो कि हम एनिमल मूवमेंट भी करेंगे, हम वेट भी उठाएंगे, हम फंक्शनल भी करेंगे, और लेकिन हम सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स भी करेंगे, हम बैलेंस पे भी काम करेंगे, मोबिलिटी पे भी. तो मेरे जैसा बच्चा जो बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक चीज़ से लेके, उसके लिए बहुत वोलसम अप्रोच मैंने बनाई. एंड आई रियलाइज कि पता नहीं, अब पीछे मुड़ के देखो तो इट्स ऑल दैट एक्सपीरियंस दैट हेल्प मी फॉर. ओके गाइस, आई थिंक अगर आप मुझे इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, आई ऑलवेज टेल यू कि आजकल हर वर्ड इज वेरी सब्जेक्टिव. पीपल हैव देयर ओन मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फिटनेस एज वेल.
तो अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इससे आई फील अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू बी हेल्प बाय दिस, बिकॉज आई एम नॉट ओनली गोइंग टू आस्क शिवम कि व्हाट इज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिटनेस और उसको क्या लगता है फिटनेस क्या है, बिकॉज कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ पतले होना इज नॉट कॉल्ड बीइंग फिट. देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस डिस्कशन अबाउट आजकल सबके फिटनेस गोल्स क्या हैं, क्योंकि again I बोल रही हूँ, social media, what you see, what celebrities might force you to believe, fitness is so much. So fitness, as per me, it should be a lifestyle. Since your teenagers, this is something, a mistake that I made. I was a fat kid in the school and I bore the grunt of it. And eventually इस पूरी जर्नी में I realized कि फिटनेस एक तो पतला होना या मसल होना है ही नहीं. जो बच्चे अगर जैसे आजकल की जनरेशन में, हम तो अलग थे, हम निकल गए थोड़े, बट आजकल बच्चे थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा हैं, तो they get affected by bullying and stuff. So people should realize that even if you're bullying someone, then also you're unfit. Because the bullying part comes from an inferiority complex or Wow, this insecurity. guy is actually what said something very very deep. If you agree with him, तो नीचे मसल वाले emoji डालो, make him feel supported and appreciated on the channel. Yes, go ahead. Right. So ये insecurity inferiority complex होता है बच्चों में, जो या तो उनके childhood issues है, उनके parents ने अभी तक उसको treat नहीं करा है, उसको solution नहीं दिया, उसको Maybe address नहीं शिवम किया. possible है कि वो भी कभी bullied थे. हो सकता है वो भी bullied थे, या हो सकता है कि वो बाकी चीज़ों में lack करते और बिकॉज दे आर फिजिकली फिट, सो अपनी लैक जो उनके मन में है वो दूसरे पे पावर इम्पोज करके दिखाते हैं. बट ऑल इन ऑल फिटनेस फॉर मी, सबसे पहले फिजिकली बात करें, यू शुड नो हाउ टू पुश योर बॉडी टू इट्स मैक्सिमम लिमिट. फिटनेस डेडलिफ्ट नहीं है या स्क्वाट नहीं है या मैं इतनी तेज, आप अपना बेस्ट दे रहे हो फिजिकली, दैट शुड बी योर गोल एवरी डे. एंड ओवरऑल फिटनेस की आप बात करो तो ओके, यू हैव टू लुक स्लिम, यू हैव टू लुक स्मार्ट, दैट इज हाउ लाइफ इज. यू हैव टू Not only slim, you have to look good. You have to look good. I have to say you have to look hot also. Yeah, but see? you have to be grounded with that. You have to help people in that journey. Be hot but be soft. That is what I usually tell to people. Be nice to people. Yeah. And that is fitness as per तो me. अभी जैसे तू फिटनेस स्पेशलिस्ट की तरह you're working, तो what are you seeing कि आजकल लोगों का क्या है बॉडी गोल एंड ऑल दैट? आजकल अगर मैं मोस्टली बोलूँ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग ही होती है डिमांड. लड़कों को आजकल सबसे पहले तो इंस्पिरेशन लेते हैं सब बॉलीवुड और हॉलीवुड बॉडीज से, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा सा उससे अनएक्सपेक्टेड आपकी हो जाती है एक्सपेक्टेशन. अनएक्सपेक्टेड नहीं, सॉरी, Too much of aspiration. Yeah, it's unrealistic. Yeah, because it's not your own profession. Like तुम्हें जिंदगी भी तो जीनी है ना. Exactly. You should not have unrealistic expectations, because जो आप stars को देख रहे हो उनके पीछे पूरी टीम है and they have a certain budget. But if you are getting motivated by seeing a movie star, it is very good. मोस्टली जो बॉडी की डिमांड है, एवरीवन वांट्स टू लुक लीन आजकल, शार्प लगना चाहते हैं. जैसे दे वो से मोस्टली पीपल से मेरे को विराट कोहली जैसा जॉ लाइन चाहिए, जॉ लाइन चाहिए, या मेरे को आई वांट टू लुक गुड इन अ सूट और अ टक्सीडो. And with the female clients, I have seen that they are aiming towards a better muscle ratio. They want to look slim, but at the same time, they want to look fuller. Slim का टाइम अब वो नहीं रहा. Slim पतला नहीं होने आता. लोग they want to be curvy or fuller. And they also want to have muscle. So this is the main goal जो मैं सबसे ज़्यादा. But I'm sure अगर लोग तेरे पास आते हैं तो with their own goals, you would help you, like get them to that level. It's not like कि वो impose करे. अगर आपको कुछ और body goal है, he will help you get to that. Easy. Right. The thing is, I'll just show you a better path. कि अगर आपको ये चाहिए तो इसका ये तरीका better है. As a trainer वो मेरा काम है. Right. If you agree with me, it's okay. Even if you don't agree with me, my job is to pull you and push you to your goal. So that is what we do. But as a trainer, I always tell you that what suits your body. कि अभी तो मैं आपकी बनवा दूंगा, आप बोलो शाहरुख खान जैसी ऐसी, बट आपकी अगर बॉडी की नेचुरल एडेप्टेबिलिटी नहीं है वो मसल होल्ड करने की, तो आप वो ट्रेनिंग छोड़ोगे तो फिर पतले होगे. तो कैसे, if somebody wants to get in touch with you, कैसे आए? They can DM me on Insta. Okay. मेरा WhatsApp नंबर भी मेरे Insta हैंडल पे है. They can text me on WhatsApp. You can call me. It's very easy. And then we can always have a consultation call. And I will give every detail, everything in the description box also, guys. Okay, guys. I hope अभी तक podcast interesting लग रहा हो. अब हम aspect में आ रहे हैं कि how is fitness different for men and women? क्योंकि ठीक है, हम सब equality की बात कर रहे हैं, but we are built differently. Our bodies work differently. तो अब we will also be discussing about PCOD and what does Shivam recommend to people, rather girls who are struggling with PCOD, and how fitness can be a little different and will obviously be different for both men. So fitness, basically idea of fitness is different for both men and women, and that is true as per me, because बहुत अलग bone structure होता है, body composition बहुत अलग होती है, दोनों के forte बहुत अलग होते हैं वर्कआउट करने के, हार्मोनल बैलेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं. तो कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे वेट लिफ्टिंग इज़ वेरी एसेंशियल.
I recommend everyone to do it. Even women. Even women. Yeah. And cardio is also important. Cardio को तो एकदम evilize कर देते हैं, but cardio is important for VO2 max. आपकी ऑक्सीमीटर जो हम कोविड में लगाते थे, वो कार्डियो उससे सबसे कनेक्टेड, आपका हार्ट रेट, आपकी हार्ट हेल्थ. बट फर्क कहाँ पे आता है कि फॉर मेन एंड वुमेन देयर आर डिफरेंट सेट्स, different rep ranges, different weight. Some exercise support a woman, a female body anatomy, and some exercises support a male's body anatomy. Right. दोनों के mood structures अलग होते हैं, दोनों की strengths अलग होती हैं. तो करनी एक ही एक्सरसाइज है दोनों को. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग लैट पुल डाउन एंड गाय इज डूइंग लैट पुल डाउन, बट आपको 15 रैप के 4 सेट नहीं करने हैं या फिर 10 रैप के 4 सेट नहीं करने जो वो कर रहा है, बिकॉज उसमें टेस्टोस्टेरोन है, उसकी बॉडी वेट लिफ्टिंग को बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी मसल ग्रो करने में. बट आपकी मसल बढ़ाने के लिए वी हैव टू हिट एट अ पर्टिकुलर रेंज विद अ पर्टिकुलर वेट, एंड दैट इज द जॉब ऑफ अ स्पेशलिस्ट. ओके. राइट. ओके. एंड पीसीओडी वाला एस्पेक्ट? पीसीओडी वाला एस्पेक्ट आजकल बहुत मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं. कुछ चीज़ें मैं आपको और बेसिक एसेंशियल्स बताता हूँ बिना ज़्यादा डिटेल में जाए. पीसीओडी अगर आपको इश्यूज हैं, फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन एवरी डे विद वेट्स, यू हैव टू डू वेट लिफ्टिंग. सेकेंड यू हैव टू डू मोबिलिटी एक्सरसाइजेस. थर्ड यू हैव टू डू लो इम्पैक्ट कार्डियो. एज एन कार्डियो है, लाइट कार्डियो है, ये नहीं कि बहुत हैवी वेट के साथ जंप्स हो रहे हैं या बहुत हैवी स्प्रिंट्स हो रहे हैं, नहीं करना. 3 फेजेस में अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉलिकुलर फेज में यू हैव टू डू heavy lifting, because it's post that, so you do heavy lifting, you get your body strength back. Luteal phase में you have to be bit careful, so आपको mobility exercises and light intensity cardio करनी है, but workout करना है. बहुत लोग कहते हैं guys, अगर आपको अभी ना ये वीडियो टेक्निकल लग रहा है, you have more questions, please comment below for part 2. हम in depth जाएंगे. This is just a very introductory type of a video. We will go in depth and yeah, continue. And then menstruation जब आपको है, then you can go for light walks, you can skip the gym, but physical activity रुकनी नहीं चाहिए. So that is PCOD. कैन पानी बहुत पियो, बिकॉज हार्मोनल आपका बैलेंस सारा पानी कम पीने से बिगड़ने लगता है. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज इफ यू कैन डू स्टार्ट डूइंग योगा, इट हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म. And will Crude Fitness help with the yoga aspect as well? Anytime, not just yoga, we do advanced yoga. Okay guys, I mean इतनी सारी information मिल रही है, we will definitely make a part 2, but just reach out to him so that he is willing to come back on this. मैं आप सबको में से काफी लोगों का favorite question पूछने वाली हूँ, especially for all the guys who's watching this video, कि please सबको बता दे एक fitness secret कि कैसे सबके आ जाए 6 pack. So now the most top 3 basic queries that I get, and I understand youth है उनको, they want to look a certain way. It is a very old saying that abs are made in the kitchen. I agree with this, because you have to eat a clean diet, calorie deficit, so that you diminish that last layer of fat covering your ab muscles. But एक चीज़ जो unaddressed जाती है usually, वो है कि आपका ab size कैसे बढ़ेगा. आपका जो obliques होते हैं, जिसको लोग V taper बोलते हैं, जो आपकी waist से नीचे आते हैं. I will put an image. Right. So वो उसका size कैसे बढ़ेगा, because that gives your abs a very सॉलिड थिक फ्रेम. या फिर आपके जो सेरेटस मसल्स है, जो यहाँ पे बॉक्सेस मसल होती है, वो कैसे बढ़ेंगी. तो वो किचन में नहीं बढ़ती, बिकॉज अगर आप किचन में डाइट भी कर रहे हो एंड यू आर नॉट वर्किंग आउट प्रॉपर्ली, तो आपकी एब्स निकल आएंगी जैसे एक स्किनी इंसान की होती है. बट इफ यू वांट टू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग थिक पेयर ऑफ एब्स विद ऑल द एब्डोमिनल मसल्स वेल डेवलप्ड, ऑब्लिक्स हो, सेरेटस हो, या आपकी एब प्रॉपर एब्स हो, सो यू हैव टू डू द बेसिक एक्सरसाइजेज दैट टारगेट देम. अब ये एक्सरसाइजेज क्रंचेस नहीं है, ये सिटअप्स नहीं है जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं. मैं घर पे 500 क्रंचेस करूंगा तो एब्स निकल आएंगी. नहीं, एब्स पहली बार निकलेंगे साफ खाने से. अब दूसरा क्वेश्चन है एब्स बड़ी कैसे होंगी. सो यू हैव टू डू टारगेटेड एक्सरसाइजेस, अगेन अ लिमिटेड रेप रेंज, अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स एंड वेट रेंज. देन योर मसल ग्रोज लाइक योर बाइसेप ग्रोज, बिकॉज एब वाज आल्सो मसल लाइक बाइसेप और शोल्डर. सो उसको भी आप वैसे ही ग्रो करोगे, उसी टेक्निकलिटी के साथ जैसे आप दूसरी मसल्स को करते हो, एंड देन इट लुक्स ग्रेट. 6 या 8 पैक भी आजकल इजीली आ जाते हैं. चलो करो, स्पैम बना लो सब बॉडी. इट्स समर्स वैसे भी इट्स इजियर, राइट? विंटर्स में इट्स tougher, you feel more lazy. Abs is not something that difficult. ये सिर्फ हवा बना है. जाओ and please share this video with 3 other people, guys. Get us more subscribers, more. जब मैं तेरा पेज चेकआउट कर रही थी तो उसमें शिवम had actually talked about fitness for the elderly, और कैसे सब बोलते हैं ना अनिल कपूर doesn't look his age. तो अब मैं बोलने वाली हूँ, शिवम आपके साथ डिस्कस करने वाला है that how do you talk about elderly and fitness in the same sentence, क्योंकि this is a concept जिसके बारे में ज्यादा लोग स्पेसिफिकली इंडिया में तो बात ही. इसका आंसर मैं पर्सनल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ. माई पेरेंट्स आर ऑलमोस्ट 60 एंड दे कैन स्क्वाट ऑल्सो, डेडलिफ्ट, overhead press, they can punch on pads, sprint, hop and do
maybe 7 out of 10 animal movements that are there. Right. So how they can do all this at this age? उनकी भी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, it wasn't very smooth. ये जो अभी they can do, उसका 5% भी they couldn't. But what happens when you work out every day, धीरे 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 करके you increase your limitations. जो आपका आधा राउंड था, एक बनेगा, एक का 2, and you look back तो आपको समझ आता है मैं अब 3 राउंड स्प्रिंट मार सकता हूँ बिना रुके. So first for this age group, the elder age group, 2 things you have to keep in mind. Number 1, आपको अपना VO2 max यानी कि अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ, अपना हार्ट हेल्थ बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे रखना है. एंड सेकेंड, यू हैव टू लिफ्ट वेट्स, यूज योर मसल्स. ये कैटाबॉलिक प्रोसेस ना इंगेज आपकी बॉडी में, बिकॉज आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी मसल्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है. सो यू हैव टू ईट गुड फूड एंड लिफ्ट वेट्स. ज़्यादा नहीं, बट वेट लिफ्ट करना बहुत जरूरी है. आई थिंक स्टार्टिंग तो सबकी जर्नी डिफिकल्ट है. इट्स नॉट लाइक एक दिन में आप हीरो बनोगे. नहीं हो सकता, बिकॉज वो एज हीरो बनने की नहीं है ना, तो वो साथ नहीं देती बॉडी आपको. यूथ में ऐसे हो जाता है. बट इवन इफ टुडे समबडी हु इज वेरी लाइक इन द यूथ आल्सो, वो भी आएंगे, उनको पहले दिन बुरा लगेगा. इट्स नॉट लाइक दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट एट इट ऑल. तो आप उस माइंडसेट से भी जाओ. नो नो नो, यू हैव टू कम विद द माइंडसेट दैट मैंने एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ. जैसे कॉलेज जाते हैं 5 साल, इट विल टेक टाइम. आई हैव टू टेक गाइडेंस, आई हैव टू बी हम्बल. एंड दोज हु आर टीचिंग दिस और डूइंग दिस in a very good space now, they have to be very supportive, very soft, and please don't be very over imposing या फिर मिसगाइड भी मत करो. मिसगाइड नहीं बनना, माचो नहीं बनना. आपको सॉफ्ट बनना है. आपकी वही आई थिंक मास्कुलिनिटी सारी उसी में है. एंड एज की अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हो एक एल्डर एज में, तो आपकी स्नोरिंग के इश्यूज, आपके जो एक डिप्रेशन किक इन रहता है बिकॉज योर एज इज इंक्रीजिंग, वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट फॉर यू. आपके जॉइंट हेल्थ में बड़ा फर्क आता है. जैसे आपने अनिल कपूर की बात की, तो सबसे बड़ा एग्जांपल वही है कि आपकी स्किन ग्लो करती है लाइक एनीथिंग, बिकॉज व्हेन यू स्वेट you know take out all the toxins. Exactly. So very important. It is a very unaddressed but very important topic कि elders should work out. कोविड जैसा अब कुछ हो नेक्स्ट टाइम तो वी हैव टू टेक केयर कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों हमारी 19-20 भी इफेक्ट नो. इनफैक्ट वी यूज दैट टाइम टू गो अप रादर देन dwindle down. वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काफी मतलब जो यंग बच्चे देख रहे हैं, एडोलेसेंट्स देख रहे हैं, जिनके अभी भी बोर्ड्स चल रहे हैं, खत्म होने वाले हैं, उनके लिए है कि फिटनेस और एडोलेसेंट्स का तो क्या बोलने वाले हैं. क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ लड़कों ने घर में शायद ये सुना होगा, बिकॉज गर्ल्स डोंट रियली उस एज में इतनी मोटिवेटेड नहीं होती फॉर फिटनेस इन द एस्पेक्ट ऑफ गोइंग टू जिम एंड ऑल, कि ज्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह करो तो हाइट रुक जाती है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल ऑफ दैट? लोगों के मिथ्स बर्स्ट कर. और गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज घर जाके ये मत बोलना हमने बोला पढ़ाई छोड़ दो. जैसे पढ़ाई करो वैसे ही हैव टू फोकस ऑन फिटनेस. सो आजकल a lot of teens and young ones I see in the gym आके वो they follow the simple bodybuilding, you know, splits, back and bicep, जो भी conventional चले आ रहे हैं, which is not wrong. Eventually that is important, but what they are missing is the main foundational movements. तो adolescents के लिए मैं अगर recommend करूँगा कि अगर आप अभी वर्कआउट करना शुरू करो, even if it is at home or a park, अपनी foundational movements जैसे कि basic pushing movement, pulling movement, रनिंग, आपका पोस्चर क्या है, आप क्रॉल कैसे करते हो या आप चीज़ें ड्रैग कैसे करते हो, उस चीज़ पे काम करो. कैसे कर सकते हैं काम? आप लैडर ड्रिल्स कर सकते हो, आप कोन ड्रिल कर सकते हो, आप वर्टिकल जंप्स कर सकते हो, आप थोड़ा सा पैड वर्क कर सकते हो, सो दैट आप अपनी बेसिक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी ठीक रखो, आपका बैलेंस बॉडी का ठीक हो, एंड आपका पोस्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट और नेग्लेक्टेड चीज़ है, आपका पोस्चर बहुत स्ट्रांग हो. इवेंचुअली आप थोड़े, जब आपका एक फाउंडेशन बन जाता है ना बॉडी का, उसके बाद थोड़े साल में आप धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग शुरू करो, बिकॉज बॉडी में मसल मास ऐड करने का ना एक टेक्निकल तरीका है. हार्डवर्क है, बट वो एक फॉर्मूला है जो हुआ है सॉल्व. बट इज इट ट्रू कि हाइट रुक जाती है एंड ऑल ऑफ दैट? दिस इज ऑल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. ऐसा कुछ नहीं होता. सर के ऊपर वेट उठाने से हाइट नहीं रुकती. ऐसे कितने बाहर वी सी पीपल डूइंग वर्क जहाँ पे वेट सर पे लगाते हैं, तो सब छोटी हाइट के तो नहीं है. बट हाँ ये है कि आप पहले जॉइंट पे अपने इतने वेट का मत दो प्रेशर, बिकॉज वो अभी आप एडोलेसेंट हो, आपके पूरे डेवलप भी नहीं हुई आपकी मसल, इट्स नॉट मैच्योर मसल. सो आप अपनी बेसिक मूवमेंट्स पे ध्यान दो कि कल को आप जब वेट लिफ्टिंग करो, योर बॉडी रिएक्ट्स वेरी फास्ट एंड यू गो ऑन अ नेक्स्ट लेवल. राइट. आई नो अभी तक आप लोग थक गए होंगे क्योंकि हमारा संडे अपलोड है, तो अब सबका लंच टाइम होने वाला है या फिर लेट ब्रेकफास्ट. बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, वेयर आई वुड आस्क शिवम कि उसकी लाइफ फिटनेस से कैसे चेंज हो गई है और उसका फिटनेस मंत्र क्या है. सो चलो खत्म करते हैं. तो लाइफ राइट नाउ अगर मैं पूछूं तो अब जैसे हम पुरानी बातें भी करते हैं, तो आई फील ये पिछले जन्म की बात है. आई डोंट नो, माई लाइफ आफ्टर एवरी 5 years अंडरगोज अ
ट्रांसफॉर्मेशन इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पर्सपेक्टिव्स। Okay. मुझे याद ही नहीं 5 साल बाद में कैसे बदल जाता फॉर गुड। Yeah. सो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोले या क्या बोले, बट अगर लाइफ का हाल ही में पूछो आप तो आई टेक इट मोर सीरियसली, Okay. बट आई टेक पीपल मोर कैजुअली नाउ। Okay. स्कूल में लगता था कि आप किसी चीज में कम हो ना हाँ. तो क्रिटिसाइज आपको लोग करते हैं, जब आप ऊपर होगे उस चीज में हाँ. सो क्रिटिसिज्म विल डाई, Yeah. बट इवेंचुअली यू सी जब Yeah. आप ऊपर आते हो तो Yeah. क्रिटिसिज्म्स इंक्रीज Yeah. एंड पीपल इवेंचुअली डाई आउट फ्रॉम योर लाइफ, पीपल dwindle आउट, Yeah. लोग Yeah. चले जाते हैं और क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है। Right. अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं। नहीं, बट आई एम सॉरी मैं तुझे इंटरप्ट कर रही हूँ कि तुझे फिटनेस से तेरा ये चेंज आया माइंडसेट में, यू वुड से, या इन जनरल? फिटनेस एक एंकर रहा है, हाँ. बट और भी पैरेलली बहुत चीजें चलती Okay. हैं एंड फिटनेस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पुश। फिटनेस में क्या होता है, आप जब देख लेते हो ना, आपने फिटनेस में देख लिया कि ये हो सकता है, Right, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन Yeah. थिंग्स। मेरे जैसा बच्चा आज हाँ, स्कूल में हाँ, मैं हाँ. इतना मस्ती करता, तो अगर वो एक बिल्कुल ही अनएथलेटिक बॉडी और बैकग्राउंड से आके आज ये फिटनेस बिजनेस चला सकता है तो चीजें हो सकती हैं। Yes. ये मेरे को फिटनेस सिखा। एंड दिस इज नॉट टू से कि अभी फन नहीं है. फन कभी नहीं जाना चाहिए। Exactly, फन yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. बट व्हाट आई हैव लर्नड कि बुराई Yeah. या अच्छाई या लोगों की जो प्रेज है, हाँ. अटेंशन है, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ इमोशन, Hmm. आई जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली ओनली। You don't need that validation. I don't need you like me, good, you see me as an idol, good, you see me as a bad person, good, you are Yeah. jealous, you are insecure, you are Yeah. superiority complex, inferiority complex, I don't take you seriously only. Yeah. So that is why I am at my peace, Hmm. and unless कि आप मेरी पर्सनल स्पेस पे आओ, हाँ. मैं रिएक्ट ही नहीं करता। Right. तो आपको जो करना है और तूने अपने को बिल्ड भी ऐसे कर लिया कि वो तेरी पर्सनल स्पेस किसी को पता ही नहीं कि कोई आई भी है. एग्जैक्टली, आप यू डोंट नो मी मच, Yeah. यू वोंट कम मच एंड आई वोंट एंटरटेन दैट आल्सो, सो Yeah. इट्स वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल समझदार के लिए हाँ. कि ये इंसान बात ही कम करता है और तभी करता है जब बात करने को हो। Yeah. सो आई डोंट डू स्मॉल टॉक, आई हाँ. हैव माय ओन पर्सनल स्पेस, otherwise I am very soft and nice towards Yeah, people, yeah. but I am a private person, so Yeah. Like if you're in his circle, he's very nice for you. yeah. But if you like अगर उसके आप unnecessary हो तो Right. फिर he doesn't care. अच्छा, Exactly. और अब बता viewers को, क्योंकि लास्ट हम उस पे आ चुके हैं कि तेरा फिटनेस मंत्र क्या है? फिटनेस मंत्र हाँ. मैं बताता हूँ आपको, दो चीज़ें बताता हूँ। Hmm. Number one फिटनेस मंत्र is to show up. You have Okay. to show up, Yeah. whether it's a gym, Yeah. whether it's your classes, whether it's your park workout, home workout. And number two fitness mantra is follow number one, because show up करना I think is most important. बाकी काम तो यार आपके ट्रेनर्स भी देख लेते हैं, आपके स्पेशलिस्ट भी देख लेंगे, बट यू हैव टू शो अप, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। कल पे मत डालो, कल हमें ऑनेस्टली पता भी नहीं कल आएगा नहीं, आज हमें पॉडकास्ट शूट करें, कल नेक्स्ट डे वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। Exactly, very true. सो लास्ट लगे तो लगे कि हम अपना बेस्ट दे के गए। Yes. ये नहीं कि हम बेस्ट बन गए, बेस्ट तो कोई नहीं बन सकता। अगर आप बेस्ट बन गए तो आपकी बहुत लिमिटेड ग्रोथ है। तो गिव योर बेस्ट, एंड टू गिव योर बेस्ट यू हैव टू शो अप, Yeah. सो दैट इज द ओनली थिंग। बाकी सब चलता है, डाइट चलती है, एक्सरसाइज भी चलती है, एब्स भी आ जाती हैं, दैट इज अ प्रोसेस। डोंट टेक इट टू सीरियसली सो दैट यू हिंडर योर लाइफ इन डे टू डे बेसिस, बट मेक इट अ वेरी रेगुलर डिसिप्लिन स्टफ कि आप अपने करियर गोल्स तो कर ही लो अचीव, बॉडी साथ में आए। सिर्फ बॉडी बनाने मत लग जाना, दैट इज समथिंग आई पर्सनली डोंट लाइक एंड आई डोंट encourage anyone. This is a thing that should be more of a passion for yourself until unless कि आप इससे दूसरों को एम्पावर करना चाहते हो, then it's a very different thing. बाकी अपना काम करो, पढ़ाई करो एंड साथ में फिट रहो Yeah. एंड बी अ नाइस ह्यूमन Yeah. टू अदर्स। Thank you so much guys for watching this video. I hope हम positively आपकी लाइफ में कोई changes लाए हों या ला पाए. If in case you want to reach out for queries, please follow both of us on Instagram. The comment section is free for all of you and we'll see you guys super soon. Bye guys.